all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us one filmmaker who is always high in demand whenever he comes up with a new project. और हो भी क्यों ना, वो काम ही कुछ ऐसा करते हैं. Yes, I'm talking about the one of his kind director, the master of mainstream cinema, I must say. Yes, Mr. Kabir Khan, who is with us right now. Kabir, welcome to Punjab Kesari Navodaya Times. कैसे हैं आप? Thank you, Namita. Thank you so much. So Kabir, be it reliving the moment of 83's India's World Cup winning moment or patriotism, you have done it all. So congratulations, first of all. Thank you so much. So how much happy from inside do you feel with the success of 83? I'm really, I must say, I'm actually overwhelmed by the love that 83 is getting. We always knew that 83 is a very, very special story. As I said, it's a sacred story for this country. You know, the most iconic sporting moment, and not just a sporting moment. I think it was a turning point in the way the country started thinking, in the way Indians started thinking. They got the belief that we can do it. You know, we were always we felt that, you know, in an international stage maybe we cannot achieve something, but 83 showed that we can fight against all odds and achieve whatever we believe in. So it was always a special story, but you know, I'm absolutely overwhelmed by the kind of love and appreciation I'm getting. If I did not put my phone on silent, we would probably not be able to go through this interview. It's non-stop. And what is nice is, you know, it's not the usual. देखिए, फिल्में तो हमने पहले भी बनाई हैं, जो, you know, उनमें से कुछ सक्सेसफुल रही हैं, आगे भी बनाते रहेंगे. लेकिन एक जो एक होता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मजा आया, you know, सबके साथ गए, congratulations. वैसे मैसेजेस नहीं है ये हर मैसेज कम से कम 2-2 पेज में जाता है. You know, people are having an emotional catharsis. I think वो इतना strong emotional connect हो रहा है ये फिल्म कि वो लोग सिर्फ एक जो customary well made film, very good film, thank you very much वाला मैसेज नहीं भेज रहे हैं. वो एक अपना emotional एक जो journey उनकी हुई है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. और वो एक for a filmmaker that's very moving, because क्या होता है कि those kind of messages truly tell you कि किस किस्म का impact हुआ है आपकी फिल्म का लोगों पे, you know, and especially from people which I'm very happy about, जो क्रिकेट नहीं देखते हैं. देखिए, जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो ऑब्वियसली बहुत मजा आएगा कि बस भाई, जैसे लोग कहते हैं कि बस भाई टनब्रिज वेल्स वाला मैच ही दिखा दो, वही बहुत है हमारे लिए. आगे पीछे तो बात की बात है. तो आई थिंक वो तो है ही एक ऑडियंस. लेकिन एक ऑडियंस, एक बहुत बड़ी ऑडियंस एक ऐसी भी है जो क्रिकेट नहीं देखती, जिनको नहीं मालूम है टनब्रिज वेल्स क्या है, कब हुआ था, यू नो, उसमें क्या हुआ था. वो जो एक रिस्पॉन्स आया ना, मुझे एक मैं एक्चुअली एक तो इंटरव्यू में पहले भी इनके बारे में जिक्र कर चुका हूँ. एक मेरी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था, और ये बहुत मतलब मेरे जहन में बैठ गया, बिकॉज इट वाज वेरी पावरफुल मैसेज. उन्होंने बोला था कि मैं उनमें से नहीं थी जो क्रिकेट को डिसलाइक करती थी. मैं क्रिकेट को डिटेस्ट करती थी. आई यूज्ड टू हेट क्रिकेट. मेरे घर में जब टीवी ऑन करके लोग क्रिकेट देखते थे ना, तो मैं रोने लगती थी, बहुत अपसेट हो जाती थी. एंड शी सेड, उस दिन जब मैंने फिल्म देखी तुम्हारी, तो मुझे अचानक ऐसे एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यार, अगर स्पोर्ट्स ये है और अगर स्पोर्ट्स ये करती है लोगों के लिए, तो क्या मैंने अपने जिंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा मिस कर दिया है? You know, have I lost something that I should have actually enjoyed from child? वो मैंने जब वो पढ़ा ना, मेरे एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए थे. मैंने कहा, बाप, this is a very very strong statement that she has made, and I think इस किस्म का appreciation जो मिला है लोगों से ना, that's what ultimately एक फिल्म मेकर को क्या चाहिए. बिकॉज क्या है कि फिल्म इज नॉट अबाउट कि आज कल एक महीना, ये it's going to live forever. You know, when you make a film moment, जी, कुछ फिल्में होती हैं जो सक्सेसफुल भी होती हैं, मेरी भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन यू नो कि अगर ये 3-4 साल बाद इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले. लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो आपको पता है कि ये अब आपके जिंदगी भर के लिए लोग इसके यू नो बात करेंगे. एंड 83 is definitely one of those films in my filmography which will always remain at the top, because एक तो इवेंट ही ऐसा है, और जो एक इम्पैक्ट इस फिल्म का हुआ है लोगों पे, जिसने भी देखी है जाके थिएटर्स में, वो बहुत ही डीप एक इम्पैक्ट रहा है. और वही मैं और रणवीर बात करते हैं कि यार, इतना नहीं कभी महसूस किया हमने. He has had many successful films, I have had many successful films, लेकिन इस किस्म का जो इमोशनल आउटपोरिंग होता है ना, कि मैसेज पढ़ के हमें आंसू आ जाए, वो कभी नहीं. तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे आपने कहा ना, टू एड ऑन, कि स्पोर्ट हमारी लाइक
is not just cricket, especially is not just a sport. It's a religion for a country like ours, है ना? तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो क्रेज पहले से भी था 83 को देखने का, और बाद में वो जो आपने बनाया एक मास्टरपीस मैं कहूंगी, उसके थ्रू लोगों के सामने आया, तो वो उनके इमोशंस बाहर आए. हाउ मच यू योरसेल्फ आर क्रेजी फॉर क्रिकेट वैसे कभी? तो एक्चुअली दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. जब मैं ये बोलता हूँ ना, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम तो बहुत ही मतलब ऐसे क्रिकेट बफ रहे हो. मैं बोलता एक्चुअली नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत मुझे शौक पता है. था. और मैं बचपन से बहुत स्पोर्ट्स खेलता हूँ, लेकिन मेरे को खेलने में ज्यादा शौक है, देखने में नहीं है. तो और जब भी मटेरियल मेरे पास आया था ना, तो मैंने बोला यार मैं इतना तो नहीं देखता हूँ क्रिकेट, और इतना तो नहीं है कि मतलब जैसे टेस्ट मैच हुआ तो 5 दिन बैठ के मैंने देख लिया. तो शुड आई बी डूइंग दिस? देन आई थॉट टू माई सेल्फ एक्चुअली आई एम द बेस्ट पर्सन, बिकॉज आई विल नेवर गेट स्वेड बाय द क्रिकेट. मैं देखूंगा इसमें ह्यूमन स्टोरी है या नहीं. बिकॉज अल्टीमेटली ना स्पोर्ट्स फिल्म में कोई स्पोर्ट्स देखने नहीं आता है, ह्यूमन स्टोरी देखने आते हैं. इट्स द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. एंड 83 में जैसे मैंने बोला, ये कुछ जो मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले हैं फ्रॉम पीपल हु डू नॉट वॉच क्रिकेट, दैट इज व्हाई द फिल्म वर्क्स. बिकॉज वो क्रिकेट देखने नहीं आए हैं, वो देखने आए हैं कि यार ये जो टीम जिस जिस I mean, they themselves didn't believe in themselves. Nobody believed in them. They fought against all odds and did for the country, which even today, when we are seeing it, it makes us so proud to be Indian. Absolutely. In fact, the film Starcast is much appreciated by all the people. So I must ask, how challenging and difficult was that for you to get the right actors for each character? I mean, all are looking like duplicates of that, like the body language, the end takes, है ना? Ranveer Singh, everyone, I believe, not just one. No, you're absolutely right. I mean, that's been one of the biggest takeaways from the film for us, that how much these boys are being appreciated. I'm really happy they're being appreciated, because the kind of effort these boys have put in is not funny. मतलब कुछ हैं जो 1 साल इन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस करी है. जो 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 रवि शास्त्री जो प्ले कर रहे हैं, धैर्य, वो राइट आर्म बॉलर थे. उन्होंने अपने आप को लेफ्ट आर्म बॉलर बनाया है टू पोर्ट्रे रवि शास्त्री. दैट्स एन अमेजिंग थिंग. इट्स नॉट इजी. आप किसी को बोलिए कि नहीं आप राइट से नहीं अपने लेफ्ट से काम करिए, मैं बोलूंगा भैया माफ करो, मैं कोई और फिल्म में चल जाऊंगा. But he took up that challenge. He turned himself from a right-hand bowler to a left-hand bowler, bowled exactly like Ravi Shastri. जब Ravi Shastri ने खुद देखा, they said, I cannot believe that he has become from a right-handed bowler to a left-handed bowler and done such a good job. और रणवीर सिंह को देख लीजिए. रणवीर सिंह has trained for 5 months. 5 घंटे क्रिकेट खेल चुके हो. It's not easy for somebody who has not grown up very playing, difficult, you know, very that difficult, to play 5 hours. मतलब बलविंदर सिंह संधू, आई रिमेम्बर कपिल देव, जब हम दिल्ली में थे, उनके साथ ही रह रहे थे, तो जब कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे, एंड कपिल सर केम एंड ही वाज वाचिंग रणवीर, यू नो, नॉन स्टॉप बॉलिंग. ही केम एंड सेड, यार बस कर रणवीर, मेरे को डर लग रहा है कि इंजरी हो जाएगी. यू नो, यू पीपल आर नॉट एथलीट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, तुम इतना मत अपने बॉडी को स्ट्रेन करो. लेकिन वो एक जुनून सवार था, आई थिंक, इन सब लड़कों में. हर किस्म की इंजरीज भी इन्होंने झेली हैं, और महीनों साल, मतलब एक्चुअली बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, इतनी बेहतरीन क्रिकेट ये लोग खेलने लगे थे, जो दिखाई देता है. मतलब जो लोग फिल्म देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है ये तो असली टीम्स खेल रही हैं. तो हम तो बल्लू सर जो हमारे कोच बन गए थे, बलविंदर सिंह संधू, उनसे यही जोक करते थे, सर इतनी ट्रेनिंग कर ली है तो एक आईपीएल टीम ही बना लीजिए, थोड़े पैसे मिल जाएंगे. तो because that's how good they had all become. They became excellent cricketers by the end. वो दिखता है. I think वो जो एक honesty होती है ना, वो आपको दिखाई दे देती है क्रिकेट में. In the film we can see that. अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, मतलब कितना वक्त लगा कुछ ट्रेट्स को अनलर्न कराने में आपको, अपने एक्टर्स को? कुछ होता है ना कि आपको एक कैरेक्टर को अडैप्ट करने के लिए कुछ अनलर्न करना है. You're right. Unlearning is a very big process. क्योंकि क्या है कि it's not a film की क्रिकेट फिल्म बना रहे, फिक्शनल है, बहुत अच्छी एक क्रिकेट टीम दिखानी है, वो आसान है. You know, get them to play cricket, but they have to play cricket like people whose styles are recognized. हार्डी सांधू तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. हार्डी सांधू तो अंडर 19 इंडिया खेल चुके हैं, वो तो अपने नींद में क्रिकेट खेल लें. लेकिन हार्डी सांधू को मदन लाल की तरह बॉलिंग करनी है, जो आसान काम नहीं है. These are iconic actions to do that, and you know, or Ranveer Singh to be able to bowl like Kapil Dev. I mean, these are very difficult things to do. तो इसलिए अनलर्न, जैसे रणवीर ने जब शुरू किया, तो बल्लू सर जो हैं, जो हमारे कोच हैं, वो उनको ऑब्जर्व करते. फिर एक दिन उन्होंने बोला, यार तू जब
बॉलिंग करता है ना तो ऐसे लगता है कि पहलवान आ रहा है बॉलिंग करने के लिए। तो बिकॉज ही हैड जस्ट कम ऑफ आई थिंक पद्मावत और समथिंग वे मसल वसल बनाए हुए थे, तो उन्होंने पहले तो कुछ 9-10 किलो मसल घटाए कि ही सेड कि तुम इतने मसल्स के साथ अगर कपिल देव की तरह का भागोगे और बोल करोगे ना तो 4 दिन में पीठ टूट जाएगी तुम्हारी। बिकॉज if anybody runs like Kapil Dev and jumps like him and lands, every time you land with 9 times your body weight on your feet. So these are ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये these are the biomechanics of sports जो आप you start learning. और जिम की जो बॉडी होती है ना वो बहुत अलग बॉडी होती है, और जो क्रिकेटर की बॉडी होती है वो बहुत अलग बॉडी होती है। तो एक तो वो अनलर्निंग होनी पड़ी, जिम से रोक दिया सबको, completely different workouts सबके लिए प्लान किए गए। जिमिंग एंड ऑल ना, वो तो रेगुलर होते हैं जिमिंग। तो सारे सबकी जिमिंग रोक दी हमने, सबके लिए अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस लेवल्स अलग अलग वर्कआउट रेजिम्स प्लान किए, उस किस्म की उनको वर्कआउट्स करवाए ताकि वो मसल्स डेवलप हो जो उनको क्रिकेटिंग में इस्तेमाल हो। जो मसल्स उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि होंगे, उनको डेवलप किया ताकि इंजरी ना हो, ताकि मतलब वो आराम से क्रिकेट खेल सके। तो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस था, मतलब 1 साल 1.5 साल का प्रोसेस तो सिर्फ उनकी ट्रेनिंग में गया। And how much creative liberty has been taken while making the movie on real life incidents, Kabir? Actually, very little, because almost every scene is almost close to what had happened, and in fact, some of the scenes, though, like down to the last word, is exactly what they said. बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते थे जब शुरू में जब ऑफकोर्स जाते थे और जैसे कपिल सर के साथ बैठते थे, मैं बोलता था कपिल सर वो उस दिन उस मैच में मैंने सुना ऐसा कुछ हुआ था, आपने क्या बोला था? मेरे को कैसे याद रहेगा, इट्स बीन 37 इयर्स, मेरे को नहीं याद है। सर अच्छा ठीक है, फिर मैं रिसर्च करके एक मैं सीन लिख देता था। सीन लिख के जब हम कपिल सर को पढ़वाते थे, अच्छा आप पढ़ो सर, आप कैसे, तब ना इट यूज्ड टू ट्रिगर हिज मेमोरी। फिर अचानक उनके दिमाग, अरे मैंने ऐसे बोला था, मैंने ये बोला था, मैंने ये लाइन बोली थी, मैंने बोला था पहले ही कंधे घेर दोगे तो कैसे। अच्छा, तो धीरे 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 पूरी स्क्रिप्ट ऐसे बनी है कि एग्जैक्टली जो चीजें उन्होंने बोली थी वो फिर हमने लिखना शुरू किया। एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ द सीन्स, I can't say the exact proportion, but a lot of the scenes are exactly the way they happened. Recreated, basically. जी बिल्कुल। जैसे वो कहता है कि तलवार निकालो, mongoose bat, तो मैंने पहले बोला mongoose bat ही बोलते होंगे, फिर एक रीडिंग में अचानक बोला उन्होंने कि नहीं एक्चुअली मैंने उसे तलवार बुलाता था। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल फिल्मी डायलॉग हो गया, मतलब mongoose bat से बेटा तलवार, तो इसलिए हमने बोला कि वो बोला तलवार निकालो, और फिर वो mongoose bat निकलती है और फिर होता है जो होता है टन विजुअल्स में। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिल्म रिलीज का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है, तो 83 को आपको लगता है कि इट्स बेस्ट टाइम टू रिलीज जो मिला? अब नहीं, वो तो आई मीन कि हमने बहुत कोशिश करी, 1.5 साल बैठे रहे, बहुत प्रोटेक्ट डिले भी किया काफी टाइम, डिले भी क्या सोचा था हमने कि चलो पैंडेमिक खत्म हो गया, फिर हमने अनाउंस किया, बट आई थिंक ये तो अब क्या कह सकते हैं, ये डेस्टिनी है कि आई थिंक वही है कि भगवान सब कुछ नहीं देता है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन हाँ जिस दिन रिलीज किया उस दिन रात को 2 स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू कर दिया, दूसरे दिन आई थिंक 6 स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू कर दिया, चौथे दिन तो दिल्ली बंद ही हो गई, दिल्ली के सारे सिनेमा घर भी बंद हो गए दिल्ली में, सिनेमा बंद हो गए। तो आई एम सेइंग these are battles we cannot fight, बट मेरे को बस ये खुशी है कि एटलीस्ट फिल्म इज आउट, अभी जहां चल रही है वहां जितने लोग जाके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन है एंड पीपल मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, लेकिन आप अपने एहतियात से अपने प्रिकॉशंस लीजिए, लेकिन फिल्म जाके देखिए, बिकॉज इस फिल्म को जो बड़े पर्दे पे देखने का मजा है ना, वो बात ही अलग है। ऑफ कोर्स आप बाद में देख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि टीवी पे नहीं आएगी या ओटीटी पे नहीं आएगी, लेकिन बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस आपने अगर मिस कर दिया ना, अलग है बिल्कुल, वो उसका फील ही अलग है। एंड एज आई सेड अभी हम बैठ के ये कह सकते हैं कि अरे यार टाइमिंग गलत हो गई, अरे बॉक्स ऑफिस बहुत इफेक्ट हो गया पैंडेमिक से, लेकिन जिस किस्म की चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में, हम बहुत छोटे लगने लगेंगे कि हम एक फिल्म को लेकर अब रो रहे हैं, जबकि इस फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है। और मैं एक्चुअली एक चीज बोलूंगा जिसकी वजह से I'll be honest, मेरे को बुरा लग रहा था, मेरे को थोड़ा सा एक डिप्रेशन हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, इतना प्यार मिल रहा है। एज अ फिल्म मेकर मैं ये जानना भी चाह रही जी, इतना प्यार मिल रहा है, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड मिल रहा है, लेकिन थिएटर्स बंद हो रहे हैं और ये सब हो रहा है, एंड आई वाज फीलिंग लो। लेकिन कपिल सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, एंड आई थिंक उसके बाद आई रियलाइज कि यार
he said one very important thing. He said, कबीर, जब हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता था ना, हमें पैसे नहीं मिले थे, हमें इज्जत मिली थी, और उस इज्जत की वजह से आप ना 40 साल बाद हम पे ये फिल्म बना रहे हो। तो आपने जो ये फिल्म बनाई है ना, पैसों के बारे में मत सोचो, जो इज्जत आपको ये मिल रही है ना, ये 40 साल और चलेगी ये इज्जत। तो आई थिंक देन आई रियलाइज कि यार ये जो हम हर फिल्म को फिर एक बॉक्स ऑफिस के थ्रू जज करने रहते, ऐसे ये फिल्म वो है ही नहीं। ये फिल्म अब जिंदगी भर चलेगी। मेरी फिल्मोग्राफी के बारे जब भी कभी बात होगी, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 83 का नाम जरूर लिया जाएगा, वो मुझे पता है, बिकॉज इट्स द प्राउडेस्ट फिल्म ऑफ माइन। डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर मैं कपिल देव सर की बात करूं, आई मेट हिम इन पर्सन, और मुझे लगता है ही सच अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, और उनकी विल पावर ने की कहीं ना कहीं 83 वर्ल्ड कप जिताने में भी उनको बहुत हेल्प किया होगा। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली, आई मीन वो ही इज अ वन ऑफ अ काइंड, एंड वो जो एक जैसे आपने बोला, जो एक पॉजिटिविटी और जो सेल्फ बिलीफ है, ऑब्वियसली वो उसी की वजह से 83 में जो हुआ वो तो एविडेंट है। जिस तरीके से जब जब द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट हिम, ही बिलीव्ड इट एंड ही लेड बाय एग्जांपल। एक होता है कि जैसे टीम वाले भी हमें कह रहे थे कि शुरू में जब कपिल ने आया, बोला हम जीतेंगे, एज द फिल्म में भी दिखाया हमने, सब हंसते थे, आ गया एक और पागल कैप्टन बोलने के लिए, जीतेंगे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे इसे। लेकिन सिर्फ बोलते नहीं थे वो, ही यूज्ड टू लीड बाय एग्जांपल। तो टनब्रिज वेल्स के बाद सबको समझ में आ गया कि दिस मैन मीन्स बिजनेस। So I think that is something that lives in him even today, that never say die, and for him to turn around and tell me this when I was getting feeling a little low, yaar, why is mahol has suddenly changed and we're not being able to enjoy the benefits of the box office because of the pandemic. He said, don't look at it in this manner. It's a film for posterity, and just enjoy it. And it takes a special person to sort of believe in that. And I'm finding one Kapil Dev sir in you also as well. You are saying the dialogue as he said to you, है ना? Yeah. Okay. Achha, what do you recall, Kabir, when you go down the memories of India winning 83? How old were you that time? So I was in school, and actually I've said this before, I had reached Hyderabad. So Hyderabad is actually my birthplace. So I used to live in Delhi. So उस टाइम छुट्टियां चल रही थी, and I think we reached Hyderabad. And मुझे याद है कि वो मैच चल रहा था, लेकिन मैच देखने का मेरे को बहुत विविड मेमोरी नहीं है। लेकिन मेरी उस रात की जो विविड मेमोरी है, आई रिमेम्बर थिंकिंग कि सब पागल क्यों हो गए। मतलब ये मेरे फैमिली में ग्रोन अप आदमी रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं सड़कों पे, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये सब पागल क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया है। उस टाइम आई डिडंट रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, बट नाउ years later I'm trying to recreate exactly what happened all those years ago. So yeah, that is a very distinct memory I have about कि यार ये सब दुनिया पागल क्यों हो गई है। And we really want you to create these kind of magic again and again in cinema once again. Thank you so much. Thank you so much, Kabir, for talking to us, and all the very, very best to you for your future. Thank you, Namita. Bye bye.